English Class 4, Chapter 1. We completed till page number 21 in our previous lecture. Now, on page number 22, the second question is match the following. Match the questions to the given answers. So, in this question, first you have to read the question and try to match with the similar answer. That is your homework. Now complete the question words using do or does. I explained you in the previous video that where to use do and with where to use does. So only he, she और it के साथ does use करना है और बाकी I, you, we, they के साथ do use करना है. Here you can see Ravi. Ravi is he. रवि क्या है? ही है. तो ही के साथ does यूज़ करेंगे. Then you के साथ do. Again you के साथ do. शीला is she. तो she के साथ does यूज़ करेंगे. And then they के साथ do. So read these sentences carefully and write the answers. Next question is complete the questions with are, am, is. I also explained you about am, is, are. तो you के साथ we have to use are, then he के साथ is, I के साथ am, they के साथ are यूज़ करना है. तो also read these whole sentences and then fill the blanks. Then listening and speaking. In listening and speaking, on page number 134, पे डॉग अवर बेस्ट फ्रेंड के नीचे माई डॉग स्पोर्ट की पोएम है. तो ये पोएम पहले रीड करनी है केयरफुली और बाद में यहाँ पे जो लिसनिंग के जो फिलअप्स दिए हैं F तक 22 पेज नंबर पे है और फिर GHI जो है वो 23 पेज नंबर पे है. तो यू हैव टू कंप्लीट दिस ब्लैंक्स इन होमवर्क. देन स्पीकिंग ऑन गिवन टॉपिक. राहुल और राशि ने अपने अपने लवली डे और टेरिबल डे के बारे में लिखा है. यू हैव टू रीड the lovely day and the terrible day and then you have to describe yourself. तुम्हें अपना खुद का कोई भी terrible day या lovely day के बारे में लिखना है. It's also your homework to read and write. Then page number 26, worksheet number 1. It's work time. Find the simile or metaphor that has been used in the sentence given below. Write S for similes and M for metaphor. तो similes और metaphor find करके लिखना है कि इस sentence में simile है या metaphor है. First sentence, Venkat and Ryan are like two peas in a pod. As I explained कि sentence में अगर like आता है या as आता है तो that will be simile. So in this sentence we have like, so it is simile. The bar of soap was as slippery as an L. So here as is used, so it is also simile. Then Mike slept like a log. Again like आया, so it is simile. Then 4 number, Shruti walks as slow as a snail. तो as is use हुआ है, तो it will be simile. Then 5th, my grandmother's lap is a soft pillow. See here strong comparison है. Is use हुआ है. My grandmother's lap is a soft pillow. Directly बोल दिया है grandmother's lap is a soft pillow. Strong comparison में metaphor आता है. So here it is metaphor. Next is Komal is a fish when she swims. अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेरिजन. डायरेक्टली बोल दिया कोमल इज अ फिश, सो इट इज़ मेटाफोर.
नेक्स्ट इज किम इज एज हंग्री एज अ हॉर्स, तो एज आया सिमिली. देन नेक्स्ट इज लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. डायरेक्टली box of chocolate, life is a box of chocolate, so it is metaphor. Now worksheet number 2. In worksheet number 2, first question is complete the sentences using simple present or present continuous tense. As I described, in simple present tense verb को हमें डायरेक्टली यूज करना है. जो भी ब्रैकेट में आपको verbs दिए हैं उसको डायरेक्टली लिखना है. ओनली इफ इट इज़ ही शी और इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो तो वर्ब के पीछे एस या ई एस लगाना है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो इज एम आर प्लस V1 ING फॉर्म यूज करना है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेदर इट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड देन वी हैव टू राइट द आंसर्स. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस डैश बी सीनू. अब बी में कितने फॉर्म आते हैं, इज, एम और आर. हमको देखना है कि दिस के साथ क्या यूज होता है, तो दिस के साथ होता है इज. दिस इज सीनू. सेकेंड सेंटेंस, ही डैश वेयर अ जीन एंड अ टी शर्ट टू स्कूल टुडे. टुडे आया, टुडे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इज, एम या आर में से कोई भी प्लस V1 ING. ही के साथ क्या आएगा, इज. तो ही इज वियर के साथ ING. ही इज वियरिंग अ जीन एंड अ टी शर्ट टू स्कूल टुडे. इट इज हिज बर्थडे. ही डैश चॉकलेट्स टू हिज फ्रेंड्स एट द मोमेंट. अगेन एक कीवर्ड आया. हमने कुछ कीवर्ड्स सीखे थे कि सेंटेंस में अगर ये कीवर्ड दिखाई दे दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तो एट द मोमेंट is our keyword that indicates present continuous. So here he के साथ is, distribute के साथ ING. While we are putting ING we have to remove E. E remove हो जाएगा और ING लगाएंगे. distributing. सीनू dash his teacher very much. likes dislikes को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे सीनू जो है वो ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म. तो जो भी हमारा वर्ब है उसके साथ एस या एस लगाएंगे. तो यहाँ पे लाइक है तो उसके साथ एस लगेगा. तो सीनू लाइक्स हिज टीचर वेरी मच. ही डैश फॉर गिव फॉर चॉकलेट्स टू हर. अब ये जो एक्टिविटी, ये जो एक्शन है वो नाउ एक्शन है कि अभी उसने लाइक तो हमेशा के लिए है पर अभी उसने 4 चॉकलेट्स दिए. तो ही इज गिविंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज गिविंग 4 चॉकलेट्स टू हर. नाउ नेक्स्ट, ही डैश एप्पल्स एंड डैश एप्पल्स टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे आया मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस. दोनों ही वर्ब को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है. तो दोनों ही वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ही के है तो दोनों के पीछे एस या एस लगेगा. यहाँ पे लव्स एस लगता है और ब्रिंग के पास पीछे भी एस लगता है, तो लव्स. नेक्स्ट इज ही डैश दैट एन एप्पल अ डे डैश द डॉक्टर अवे. अवेयरनेस है, वो जानता ही है कि एप्पल अ डे. देखो ये ही के साथ जो वर्ब है उसमें एस लगेगा और एन एप्पल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ईट. तो ईट के साथ भी जो वर्ब आता है उसके पीछे भी एस लगेगा. तो दोनों ही वर्ब के पीछे एस लगाने हैं. ही नोज दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इन नेक्स्ट एक्सरसाइज use the words in the brackets to fill in the blanks. Use simple present or present continuous tense. One has been done for you. So same as we did the first exercise. एक एग्जाम्पल दिया है, टीना goes to the market on Sundays. Sundays लिखा है तो every Sunday she is visiting market. Every Sunday she visits market. So now हम लोग सेंटेंस रीड करते जाएंगे और
वर्ब का जो भी फॉर्म आता है वो लिखते जाएंगे. माई सिस्टर डैश टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे एक्शन मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस. और माई सिस्टर जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है तो एस लगेगा. वी डैश हैव अवर ब्रेकफास्ट, प्लीज वेट फॉर मी. तो दिस इज नाउ एक्शन. अभी बोल रहे हैं कि वेट करो, तो वी के साथ आर, हैव के साथ ing. वी आर हैविंग अवर ब्रेकफास्ट, प्लीज वेट फॉर मी. देन आई डैश गो टू द सिनेमा नाउ. नाउ आया तो कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू द सिनेमा नाउ. पीटर नॉट लाइक रैप म्यूजिक. अब देखो यहाँ पे लाइक डिसलाइक की जब बात होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब नेगेटिव नॉट यूज़ करना होता है तो डू या तो डज यूज़ करना पड़ता है. डज हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, तो यहाँ पे पीटर जो है वो थर्ड पर्सन है, तो डज नॉट लाइक. और जब डज यूज़ कर लिया तो लाइक के पीछे एस या एस लगाना नहीं है. नेक्स्ट इज ही डैश टू पॉप म्यूजिक एट द मोमेंट. एट द मोमेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस. ही इज लिसनिंग टू पॉप म्यूजिक एट द मोमेंट. लेट्स गो आउट, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ. अब कंटिन्यूस में तो इज होता ही है, तो इज के बाद नॉट लगा देना है और वर्ब का जो ing फॉर्म है वो लगाना है. नाउ था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, तो इस तरह से नॉट कहाँ रखना है वो भी याद रखना है. हरी अप एवरीबडी डैश फॉर यू. हरी अप यानी नाउ एक्शन है, अभी की बात चल रही है, एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस. Everybody is waiting for you. Next is water dash boil at 100 degree centigrade. तो ये एक ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होता है. तो ट्रूथ्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और वाटर जो है वो थर्ड पर्सन है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड. नेक्स्ट इज द वाटर डैश कैन यू टर्न इट ऑफ. तो नाउ एक्शन आया ये, क्या तुम अभी टर्न ऑफ कर दोगे. तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, कंटिन्यूस है, तो द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ. I must go now. It is dash late. It dash get late. Now आया तो present continuous. It is getting late. I usually dash to work by car. अब I जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ एस या एस नहीं लगता है, तो हम गो का जो भी फॉर्म है वही का वही रखेंगे. I usually go to work by car. The moon dash round the earth. तो मून जो है वो हमेशा ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ही अर्थ के राउंड्स लगाता है, तो द मून गोज राउंड द अर्थ. हरी अप, द बस इज वेटिंग फॉर यू. जल्दी करो, नाउ एक्शन. बस खड़ी है, वेट कर रही है, तो बस इज वेटिंग फॉर यू. वेयर वी गो, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में